Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at home in this tough time and are doing really well. So in today's video we are going to discuss about class 10th science NCERT chapter number 9, that is light, reflection and refraction. You must know in this chapter we will be discussing two very important phenomena related to light, that is reflection and refraction. So in the module, the chapter is divided into two parts. In the module 1, we will be discussing all the process related to the reflection of light. That is, what is the reflection of light, what are the types of reflection of light, okay, and how the reflection occurs at the plane surfaces, either how the reflection occurs at the spherical surfaces. But in the module 2, we will discuss all the processes related to the refraction, that what is refraction, how refraction occurs, why refraction occurs, and refraction of light at we can say at the spherical surfaces, just means we can say lenses. So in the module 1 we are limited to the we will limit our study to the reflection of light only. So far we have discussed the process of reflection through plane surfaces only, and in today's class we will be discussing the reflection of light through spherical mirrors. And if you have not watched those videos of the same chapter, then please go to our channel. All the videos will be available in the playlist. Please watch all the basic videos. If you get the basic concept of the chapter, then each and everything will be very clear to you, because you cannot understand the chapter from in between. So you must go through the chapter in a sequential manner. You must understand the things that are taught in the basic videos, just like in the part 1 we have discussed, part 2 we have discussed. So 2 or 3 parts we have uploaded till now, so please watch all those parts. After that you can watch this part, okay. So right now we need to discuss the reflection of light through spherical surfaces, okay. This article or this video is limited to the reflection of light through spherical surfaces. In this video we will not going to talk about reflection of light through plane surfaces, only we will discuss about the spherical surfaces. I think you must be knowing when we do the reflection or when we study the reflection of light through the plane mirror, then you must have observed a common phenomena. Just if we are incidenting a parallel ray of light to the plane mirror, then what does it do? It simply changes the direction of that parallel beam. That means it reflects the parallel beam into the another direction, because the plane mirror is a smooth surface, so it will cause a regular reflection, as I have told you in our I think second or third video. If you have not watched that one, you can also watch in the playlist. It will be available somewhere in the playlist. So what does the plane mirror do? We simply, if we are incidenting a parallel beam of light just like this, if we are incidenting, then what it will do? It will simply change the direction of that parallel beam. Just like we are having, sorry, we don't have space. I will be explaining you just after that this topic, okay, don't worry. So what does the plane mirror do? Simply changes the direction. It will not converge the parallel beam, either it will not diverge. There are two new terms, converge and diverge. What do you mean by the converge, or what do you mean by diverge? Divergence of light, either the convergence of light. I would like to recall these terms for you because these are very basic terms. Convergence of light means to converge. Converge means to collect or to get collected at single point. Whenever we are incidenting a parallel beam of light, and if the parallel beam of light is getting collected at one single point, then this process is called as convergence of light. And whenever the light rays are getting diverged, whenever we are having a parallel rays and after striking through a, you can say, spherical surface, they are getting diverged, then they are getting away from each other, then this process of getting away from each other is called the divergence of light. So it will be very clear whenever we are drawing the respective diagrams for that. So till now you must understand as a theoretical basis, okay. So why I am just trying to get into the concept, that why we are trying to understand, why we are going to study about the spherical mirrors, because we need to understand two very important phenomena, that is convergence of light, either the divergence of light. So all the spherical surfaces we are having, spherical surfaces, so what they will do, they will either converge the beam of light, either they will diverge the parallel beam of light. So as the plane mirror cannot do. प्लेन मिरर में क्या होता है, वो क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आप उस पर इंसिडेंट करोगे तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, वो लाइट को डाइवर्ज नहीं करेगा ना वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है।
कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट कर देना, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देना, वो सारी रेज एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएंगी। और डाइवर्ज मीन्स होता है टू स्प्रेड आउट, जो भी पैरेलल रेज होंगी वो आपकी दूर चली जाएंगी एक दूसरे से, उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। अभी देखते हैं क्या होता है स्फेरिकल मिरर, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। सो फर्स्ट इज स्फेरिकल मिरर, ओके। Let's start the first concept, that is spherical mirror. What are spherical mirror? Spherical, I think you must be having the very familiar, this word is taken from the word sphere, okay. So spherical means something which is the part of a sphere. So we can say a spherical mirror is spherical mirror are those mirror which have a spherical surface, or we can say the mirrors in which the reflecting surface is a part of hollow sphere, okay. We can say the reflecting surface is a part of hollow sphere. So these are very simple definition, it is written over here. Spherical mirrors are those mirrors which have spherical reflecting surface. That means the reflecting surface in this case will not be plane, they will be having a spherical reflecting surface. उसमें कैसी reflecting surface होगी? Spherical होगी. That means they will be having a part of sphere as a reflecting surface. उसमें एक जो आपका एक पूरा स्फेयर होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा उनका, वो कैसा होगा? कर्व होगा। इट विल नॉट बी स्ट्रेट, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर्स, दे आर नॉट ओके। द अनदर नेम फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज कर्व्ड मिरर्स, राइट, बिकॉज दे हैव द कर्व, they have the spherical surface as the curve, just like this. Now we are having spherical surfaces of two types. दो टाइप के spherical surfaces होते हैं, first is concave, second one is convex, okay. Spherical surface is clear to you. What is spherical mirrors? Spherical mirrors are those mirror which are having spherical reflecting surfaces. That means their reflecting surface is not plane, they have the spherical reflecting surface. उनका reflecting surface कैसा होगा? Spherical होगा। अभी देखते हैं किस तरह से spherical होगा। I will be drawing the diagram for you so that all the concept will be very clear to you. Don't worry. So we are having these are two types. First one is concave, second one is convex. दो टाइप के होते हैं, एक concave होता है और एक convex होता है। Concave मीन्स होता है बेंटिन सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस जो अंदर से दबा होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, जो थोड़ा सा बल्ज होता है, बाहर उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। अभी देखते हैं डायग्राम में, बहुत क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन से कॉनकेव मिरर्स आर व्हाट? कॉनकेव मिरर्स इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट concave surface. Concave means bent in surface. So okay, what are the concave mirror? Concave mirror is the mirror in which reflection of light occurs at concave surface. तो कॉन्केव मिरर क्या होता है? कॉन्केव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? कॉन्केव सरफेस पे होता है। अभी कॉन्केव क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, अभी क्लियर होगा। डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं, जस्ट वेट कीजिए। ओके ओके, so now we need to discuss about concave mirror. I am telling you what is concave mirror. Concave mirror is that spherical mirror in which reflection of light takes place at bent in or concave surface. So we are having a figure of concave mirror. Now it is a part of, I have told you, these are the mirrors which are having spherical surfaces. So I think you are able to have a look, that is, it is a part of a sphere. So if we are just completing this one, so we will be getting a sphere. So we have cut this part from a sphere of glass. Okay, so this is the part of a sphere and that's why we are calling it as spherical mirror. क्यों हम इसको spherical mirror बोल रहे हैं? क्योंकि sphere का part होता है। Either you can also call them as curved mirror, right? We are having first these red lines. I think you have it is clearly visible to you. These oblique red lines represents the polished surface. कौन सी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं? दीज आर रिप्रेजेंटिंग द पॉलिश्ड वन। जो रेड लाइंस हैं ये पॉलिश्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ये वाला पोर्शन है ये स्मूथ है। यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ओके, एट दिस पॉइंट, एट दिस एरिया द रिफ्लेक्शन, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट पुट द एरो ओवर हियर। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड हाउ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, दिस इज द बेंट इन सरफेस। ये कैसा है? अंदर से बेंट है ना, इसलिए मैंने क्या बोला, इसको बेंट इन सरफेस बोला। इसी को हम कॉनकेव बोलते हैं। इफ द सरफेस इज ओके डिप्रेस्ड इनसाइड देन दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव। सरफेस कैसा होता है? डिप्रेस्ड होता है, अंदर दबा हुआ होता है।
अगर रिफ्लेक्शन आपका बेंट इन सरफेस से हो रहा है, डिप्रेस्ड सरफेस से हो रहा है, इन दैट केस द मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्लियर है? स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लिखने की कोई नीड नहीं थी, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर आर दोज मिरर विच आर हैविंग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज। द डेफिनेशन इज वेरी क्लियरली वेरी इजीली अवेलेबल इन द मैनी बुक्स। बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन होगी, तो आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं कि सर क्या ही डेफिनेशन लिखेंगे। बहुत बेसिक है, उसकी डेफिनेशन लिखने की कोई इतनी नीड नहीं है, इसलिए मैंने उसको इरेज किया है। आप सिंपल लिख लोगे स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर हैविंग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे मिरर्स जिसमें स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ठीक है, राइट नाउ वी आर हैविंग दीज आर ऑफ टू टाइप्स। आई हैव टोल्ड यू कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इन कॉनकेव मिरर्स, सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। सो नाउ we need to discuss first type of the spherical mirror, that is concave mirror. concave मैंने आपको बताया कॉनकेव क्या होता है। कॉनकेव एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन किस साइड से होता है? कॉनकेव साइड से, मतलब डिप्रेस्ड साइड से रिफ्लेक्शन होता है। और जो बल्ज्ड पोर्शन होता है, ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, उस साइड क्या होता है? पॉलिश होता है। वन साइड इट इज हैविंग पॉलिश बिकॉज मिरर यू नो either it is spherical mirror either it is plane mirror, it will be having one side as polish। एक साइड क्या होना चाहिए? पॉलिश होना चाहिए, तभी मिरर बनेगा ये, अदरवाइज लेंस बन जाएगा या फिर आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो ऑब्लिक लाइंस आपको दिख रही हैं ये पॉलिश्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ये बेंटिन पोर्शन है या डिप्रेस्ड पोर्शन है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। आई होप सो द आइडिया इज क्लियर। प्लीज pause the video to take the screenshot of it. Then we will take the next topic. Okay, please pause the video to take the screenshot of it, and after that we will be talking about second topic, that is convex mirror. Just very simple. Please watch this complete video. I promise you that each and everything will be very clear to you. Each and every concept will be definitely clear to you, I promise you. If you are watching this video with patience, you must have little bit patience because we are trying to recall you all that things in detail, so it will take a little bit time, but at the end of the day it will be clear. Okay, so just wait. Okay, I think you have taken the screenshot. Please pause the video to make a note of it. Whatever the method suits to you, you can use that one, right? Okay. Hello everyone, I think you have taken the screenshot of the previous concept, and right now we need to discuss another concept, that is convex mirror. So these are the spherical mirrors in which reflection of light occurs at convex surface, that means the bulged out surface. Okay, so in the concave I have told you concave surfaces in which the reflection of light is occurring at bent in surface, that means the reflection of light occurs at depressed portion. कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो एक डिप्रेस्ड पोर्शन पे होता है। ठीक है, इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड से होगा। जो ये आपका दबा हुआ पोर्शन है, जो डिप्रेस्ड पोर्शन है, उसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। बट इफ वी आर हैविंग अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इट्स हैविंग जस्ट वी कैन से ऑपोजिट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Okay, in this reflecting surface, reflection of light occurs at convex surface. Convex means the bulged out. Convex means the bulged out, or we can say the bulging out. Bulging out means the उभरा हुआ जो होता है ये वाला. ठीक है. Right now we are having a concave surface over here, concave mirror over here, and we have drawn a figure of convex mirror over here. दोनों फिगर्स हमने ड्रॉ किए हैं. इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो बल्ज्ड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. मतलब इधर से लाइट को एंटर करते हैं, यहाँ से इसको सेंड करते हैं, तो ये क्या करता है, इधर से जो ये बल्ज्ड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कॉनकेव वाला, कॉन्वेक्स वाला, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है. और इसमें जो डिप्रेस्ड पोर्शन है उस साइड में क्या होता है, पॉलिश होता है. बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि इसमें डिप्रेस्ड साइड से रिफ्लेक्शन होता है, बल्ज्ड पोर्शन में पॉलिश होता है. इसमें रिवर्स होता है, इसमें बल्ज्ड पोर्शन में पॉलिश नहीं होता है. बल्ज्ड पोर्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश होता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर. इज इट क्लियर? आई थिंक सो.
कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन बल्ज्ड पोर्शन से होता है। किधर सरफेस से होता है, बल्ज्ड सरफेस से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ज सरफेस दिखा रखी है मैंने, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर आपको दिख रहा है फिगर में। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस साइड से होगा, इस बल्ज्ड वाली पोर्शन से। डिप्रेस साइड में क्या रखा है, पॉलिश कर रखा है। जिस साइड में पॉलिश होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में मैंने आपको बताया है किधर बल्ज्ड पोर्शन में पॉलिश है, तो डिप्रेस्ड पोर्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आई थिंक सो द आइडिया इज क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है। कॉनकेव में मैंने आपको बताया था, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें हम लोग जो लाइट है हमारी वो डिप्रेस्ड पोर्शन से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। बल्ज्ड पोर्शन में क्या होता है, पॉलिश होता है। देखो बाहर जो उभरा हुआ पोर्शन है उसमें क्या है, पॉलिश है। ये रेड कलर की जो आपको ऑब्लिक लाइंस दिख रही हैं ये क्या है, पॉलिश को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये पॉलिश है आपका। डिप्रेस्ड पोर्शन से क्या होगा, इसके ऑपोजिट वाली सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर बल्ज्ड पोर्शन की पॉलिश है तो आपका कॉनकेव सरफेस पे या बेंट इन सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या है आपका, कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन बल्ज्ड पोर्शन से होता है। डिप्रेस्ड पोर्शन में क्या होता है, उसमें पॉलिश होती है। ठीक है, ये एक मिरर है आपका सिंपल। इसमें देखो डिप्रेस्ड पोर्शन में हमने पॉलिश दिखा रखी है। जो स्लेंटेड ऑब्लिक लाइन है, स्लेंटिंग लाइंस है, ये पॉलिश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो रेड वाली लाइंस हैं। और जो ये बल्ज्ड पोर्शन है इसके ऑपोजिट वाला, यहाँ से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरो दिख रहा है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। दोनों में ये डिफरेंस है बस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। दो टाइप के स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनको समझना बहुत ज़रूरी। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बेसिक्स हैं, इनसे रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। किस साइड से रिफ्लेक्ट करेगा ये, और ये किस साइड से रिफ्लेक्ट करेगा। दोनों टाइप के मिरर्स में, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में, आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ और नए टर्म्स इससे रिलेटेड, जैसे आपका लेट्स सपोज पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर लीजिए। जो भी आपको ईजी लगता है पॉज करके आपको नोट करना अच्छा लगता है, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना अच्छा लगता है, जो मेथड आपको सूटेबल लगता है, जो आपको बेटा ईजी लगता है उसको यूज़ कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी नोट्स में कन्वर्ट कीजिए। राइट, okay, so now we need to now time to know about some more terms related to the spherical mirrors. Just like I have told you, pole we need to discuss, center of curvature, we need to discuss principal axis, we need to discuss the radius of curvature, right? So these are the four new terms you need to know about it. आपको इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको जानना ही पड़ेगा अगर आप रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस पढ़ रहे हैं। ये वाला टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो फर्स्ट हम लेते हैं पोल। सो फर्स्ट इज पोल। पोल इज व्हाट, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। तो ये मिरर था, यहाँ पे जितना भी अपर्चर था, ये ब्लैक जितना पोर्शन दिख रहा है, दैट इज योर मिरर। Okay, I have told you what is the mirror. Mirror is the part of sphere. Okay, I have told you mirror is the part of sphere. That's why these mirrors are called as spherical mirrors. And I have just completed this mirror by having the red sketch also. मैंने रेड वाला जो कलर है उससे पूरा कंप्लीट स्फेयर किया है। क्यों किया है वो भी अभी आपको बताऊंगा क्यों मैंने कंप्लीट ड्रॉ किया है। राइट नाउ दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मिरर्स आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। इनको स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्फेरिकल ग्लास का ग्लास के पार्ट होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास से कट करके ड्रॉ किए जाते हैं, कट करके बनाए जाते हैं। राइट, सो पोल क्या होता है, इसका मिरर का ऑप्टिकल सेंटर जहाँ पे ये अपर्चर है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको अपर्चर बोलते हैं। जितना पोर्शन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। यहाँ से यहाँ तक जो बेंट वाला सरफेस है ये पूरा क्या है, अपर्चर है। तो अपर्चर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है,
सो पोल का मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जितनी भी डिस्टेंसेज आप मेज़र करोगे दे ऑल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ओनली। वो कहाँ से मेज़र होंगी? सारी डिस्टेंसेज पोल से ही मेज़र होंगी। जब हम अभी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जितनी भी डिस्टेंसेज हम ऑब्जेक्ट की इमेज की जो भी डिस्टेंसेज मेज़र करेंगे वो सारा पोल से ही करेंगे, इसलिए पोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। You must understand what is center of curvature. I have told you center of curvature is the center of that sphere of which mirror is a part. Mirror is a part. मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका मिरर पार्ट होता है। यहाँ पे मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो सेंटर होगा मिरर का, जिस स्फेयर का जिससे हमने मिरर को कैलकुलेट, जिससे हमने मिरर को ड्रॉ किया है या जिससे हमने मिरर को कट किया है, तो उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, राइट। सो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज़ द सेंटर दैट सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, सॉरी, इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट, ठीक है। ये उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका मिरर पार्ट होता है। मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो स्फेयर ये मिरर स्फेयर का क्या है, सेंटर आ रहा है यहाँ पे सी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, ओके। दिस इज नोन एज सी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। नाउ वी आर हैविंग वन इंपॉर्टेंट न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। वी आर हैविंग principal axis. Principal axis is what? It's a horizontal line that is passing through, or that joins, we can say that is passing through center of curvature and the pole. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करती है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका बाहर भी जाएगी, ऐसा नहीं कि यहीं तक रहेगी, और आगे भी ड्रॉ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अभी हम जब इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो बहुत लेंदी इसको ड्रॉ करेंगे, कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हो। इट इज़ नॉट लिमिटेड टिल हेयर, ओके। डायमीटर नहीं है, इसको आगे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। इसको आप अगर बाहर ड्रॉ करना चाहो तो आप इतना भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इज इट क्लियर? ओके। पोल क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं। पोल क्या होता है? जो मिरर होता है हमारा, ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ योर मिरर। मैंने आपको पॉलिश नहीं ड्रॉ किया है, पॉलिश भी बना देता हूँ अभी, ठीक है, वरना कहेंगे मिरर तो है ही नहीं सही, तो पॉलिश थोड़ा सा चेंज करके ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पॉलिश है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको ये पॉलिश है। जो ऑब्लिक लाइन्स आपको दिख रही हैं ये सारी पॉलिश्ड पोर्शन है। ये रेड कलर की ऑब्लिक लाइन्स आपको दिख रही हैं ये सारी क्या है? पॉलिश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मिरर है, ठीक है। मिरर जितना भी ये ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, जितना भी ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैंने अंदर से ड्रॉ कर दिया है, सॉरी, है ना। जो ये जितना ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, जितना ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये आपको सारा क्या है? ये मिरर है, ठीक है। ये सारा क्या है? मिरर है, ठीक है। ये मिरर है, और जो ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं आपको, ये स्लैंटिंग लाइंस, ये क्या है? पॉलिश्ड लाइन, पॉलिश्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा ऑकवर्ड बन गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको सही कर देता हूँ। इतना ज़्यादा ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, जो लाइंस दिख रही हैं इतनी ज़्यादा स्लैंटिंग नहीं होती, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है फिगर, अच्छे से सही कर देते हैं, है ना। फिगर मज़ा नहीं, अगर अच्छा नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो फिर आपको बढ़िया डायग्राम भी ड्रॉ होना चाहिए, और डायग्राम अगर बोरिंग लगने लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। ये इस तरह से जो पॉलिश सरफेस है अभी कुछ हद तक सही लग रही है, इतनी भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी इससे पहले, तो इसलिए मैंने उसको चेंज किया, सॉरी ब्लैक कलर से करना चाहिए था, रेड से कर दिया। जहाँ रेड से करना चाहिए ये थोड़ा सा बल्ज हो गया, है ना। अभी करते हैं, जस्ट वेट कीजिए। ये जो पोर्शंस दिख रही हैं, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये पॉलिश्ड है, ठीक है। ये पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल क्या होता है? पोल, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर P। ये आपका मिरर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जहाँ से पॉलिश स्टार्ट हो रही है ना, पॉलिश सरफेस, ये आपका मिरर है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अपर्चर है, यहाँ तक इसका अपर्चर है, ठीक है। तो ये मिरर है, मिरर का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उसको पोल बोलते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है यहाँ पे बीच में आ रहा है ना, तो इस अपर्चर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं। और ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, ठीक है।
फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे हमने मिरर को कट किया है, या मिरर जिसका पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्फीयर मैंने आपको दिखाया, तो ये मिरर क्या है, स्फीयर का ही पार्ट है। तो उसमें क्या होगा, मिरर स्फीयर को ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर चाहिए, तो ये एक सेंटर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सेंटर है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, राइट। फिर एक न्यू टर्म है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग और द लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, ओके। द लाइन ज्वाइनिंग और वी कैन से द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल, ओके। इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ओके। सो यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, okay. What is radius of curvature? Very simple, as we know what is center of curvature, this is very clear, the center of the sphere of which mirror is a part। किस उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बहुत सिंपल है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। वेरी सिंपल, पोल्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस, राइट। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, ओके। पॉज करके नोट डाउन करना अच्छा लगता है तो पॉज करके कीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। देन हमने क्या डिस्कस किया है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, दो टाइप होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, राइट। कॉनकेव में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, बेंट इन सर्फेस से होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, बल्ज्ड आउट सर्फेस से होता है, या बल्जिंग आउट सर्फेस से रिफ्लेक्शन होता है, ओके। सो उसके बाद मैंने कुछ टर्म्स बताए हैं जो आपको स्फेरिकल मिरर्स के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जस्ट लाइक आपका पोल आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता होना चाहिए। और भी टर्म्स हैं, वो अभी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको प्लीज़ लाइक करिए, और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आके वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, जहां भी आप अटैच हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़े हैं, जहाँ जिनसे भी जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और लोगों को, क्योंकि हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना बेस्ट हो सकता है उतना ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारी बुक्स से कंटेंट बनाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है हमारा, सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा, जहाँ पे भी आप फेसबुक वॉल पे अटैच हैं तो फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अटैच्ड हैं वहाँ पे क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हाई फी एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और सारी वीडियोस आएंगी 1 बाय 1, थोड़ा सा डिले हुआ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे कुछ इशूज़ चल रहे थे तो उसको शॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगा। बट रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी फ्रॉम टुडे। आई प्रॉमिस यू विल गेट ईच एटलीस्ट 1 वीडियो अ डे। आपको डेली एक लेक्चर आपको मिलेगा, जिससे कि आप अपनी स्टडीज़ को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इतनी देर तक चैनल पर आके वीडियो देखते हैं, प्रेम पूर्वक आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।